दादा तुमसे ही चेहरे की है लाली, इस बगिया के फूल हैं हम और तू माली। दादा तुमसे ही चेहरे की है लाली, इस बगिया के फूल हैं हम और तू माली। जब तक है धड़कन ये तेरा साथ रहे, हम बच्चों के सर पे हमेशा हाथ रहे। दादा तुमसे ही चेहरे की है लाली, इस बगिया के फूल हैं हम और तू माली। A warm welcome to all the lovely grandparents gathered here today to celebrate the joyous occasion of Grandparents' Day. I, Drishti Saini, and I, Snehas Kumar, are going to host today's program. बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, जिंदगी जीने का तजुर्बा मिलता है दादा दादी नाना नानी की बातों में। On this special day, we come together to honor and cherish the incredible grandparents who plays an indispensable role in our life. They are the foundation of our families, offering love, wisdom, and endless support. Today's event promises to be a delightful and unforgettable experience as we have prepared a series of heartwarming activities to express our gratitude and love for these wonderful individuals. Before we begin, let us take a moment to seek the blessings of the Almighty and express our thankfulness for the blessings of having such a caring grandparents. Happy Grandparents' Day. The day honors the adorable bond between the grandparents and their grandchildren. After all, the grandparents are the ones beside parents who love their grandchildren unconditionally. Countries worldwide celebrate Grandparents' Day with great enthusiasm throughout the year. Grandparents are our role model. Grandparents offer us a wide range of knowledge, emotions, experience they had as parents. They are playmates. They were strict with our parents, but as grandparents, they are lenient with us. Often, we are more comfortable of sharing and talking with them than our parents. They are nurturers and act as spiritual guides for grandchildren. They give us values like compassion, peace, love, faith, tolerance, being kind and gentle. Grandparents are accepted and cared for by all families. Today, let us join to celebrate a day for them. Here, we are praying together for their good health and happiness. Thank you, God, for our wonderful grandparents. Thank you, God, for the special times that we have with them. Amen. Lord God Almighty, bless our grandparents with long life, happiness, and health. May they remain constant in your love and be loving signs to all their family members. God of mercy, you have given a long life to children. Let them feel the tenderness and strength of your presence with long life. Bless our grandparents with good health and happiness. Share with them the comfort of your presence, even in loneliness. May you be their hope and confidence. O Lord of my faith, make them the channels of peace and love. Help them to embrace those who suffer more than they are. O Lord, sustain them in their weakness and help them to live life to the full in each moment that you give in them. They may live free from pain and suffering in their lives. Reward them for their faith and fidelity for their selfless work. I pray that you make their lives even more glorious and fruitful than before. Let them feel like everything hasn't been lost. Let their futures be sorted. Let them never fall into any difficulty. Be with them and guide them in their needs. Let them never be cheated by anyone. We make this prayer in a holy name. Amen. हे पिता पुत्र ईश्वर, हे पवित्र आत्मा,
साक्षात है, प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। भजू मैं तेरा नाम, भजू मैं तेरा नाम, तू ही मेरा तारणहार, प्रभु तू ही मेरा तारणहार। Heartily welcome our Vice Chairman, Shri Rikabji Khator. Before we proceed with the next segment, let me share with you an insightful speech that will certainly captivate our hearts and minds. Our next speaker is Siddhant Nabira from class 10th A. Grandparents are the silver threads that connect the generations with love, wisdom, and cherished memories. Welcome to our hearts, where your presence is a treasured gift that forever enriches our lives. दादा दादी एवं नाना नानी के रूप में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में आपकी मौजूदगी एक अनमोल खजाना है। आप लोग हमारे लिए अपने स्नेह, ममता और आशीर्वाद के संचय होते हैं, जिससे हम अपने जीवन को हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। दादा दादी, आपका आशीर्वाद हमारे लिए एक साधन है जो हमें अधिक समझदार, दयालु और समर्पित बनाता है। आपके लिए संबंध और कथाएं हमारे लिए अविस्मरणीय हैं, जो हमें अधिक संवेदनशील और समझदार बनाती हैं। आप हमें इन सुनहरे समय का स्मरण कराते हैं जब हम आपके साथ अपना समय बिताते हैं, आपके साथी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप हमारे लिए एक अनमोल वरदान हैं। आपका स्नेह और साथ हमें अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हम आपकी ममता में लिप्त रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप सभी ने हमें शिक्षा दी है कि जीवन के हर मोड़ पर समर्पण और संघर्ष ही सफलता को हासिल करने में मदद दे सकता है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा, दादा दादी का प्यार का कोई मोल नहीं।
दादा दादी के प्यार का कोई मोल नहीं, बल्कि वह ही हमारे जीवन के सच्चे अनमोल रत्न हैं। धन्यवाद। उनके चेहरे पर आई झुर्रियाँ सबूत है कि वे हमारे घरों में सबसे अधिक अनुभवी लोग हैं। इसलिए हम बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सीखें और फिर अपने जीवन का निर्माण करें। Now, it's time to immerse ourselves in a tale beautifully captures the essence of grandparents and grandchild relationship. Our talented performers will present a heart-touching skit that reminds us the precious moment shared between generations. दोस्तों, आपको ये अजीब लग रहा होगा कि ये बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो आज के समय में हमारे बुजुर्ग एक नई तरह की जिम्मेदारी के बोझ से दबे हुए हैं। एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारे परिवार, समाज तथा देश को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आइए प्रस्तुत है आपके सम्मुख हमारी लघु नाटिका, जिसका शीर्षक है दूसरी पारी। राजू बेटा, आज क्या बात है? स्कूल में कुछ विशेष था क्या? क्या दादाजी, आप भी बस टोकते रहते हैं, ये क्या है वो क्या है। बेटा, मैं तो बस पूछ रहा था। वो मेरे बर्थडे पर आप मुझे नया लैपटॉप देने वाले थे, याद है ना? अरे राजू, दादाजी कहाँ से लाएंगे? वो तो रिटायर्ड पर्सन है ना, और पेंशन भी अंशकालीन ही मिलती है, जिससे घर का राशन आता है, घर के सारे बिल भरे जाते हैं। दादाजी की सारी पेंशन हमारे ऊपर ही खर्च हो जाती है। अरे मैं कौन सी बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, एक लैपटॉप ही तो मांग रहा हूँ। तो तुम पापा को भी कह सकते हो, वो भी दिला सकते हैं। ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? इस बार पापा को मम्मी के लिए नया नेकलेस लेना है, तो पापा ने कहा कि दादाजी ही लैपटॉप दिलाएंगे। अरे बेटा, तुम दादाजी को परेशान मत करो ना। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो लैपटॉप ही चाहिए। ये क्या बात हुई? दादाजी कहाँ से लाएंगे? बेटा, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। बेटा, मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत डिमांडें पूरी की है, ये भी करने की कोशिश करूँगा। ये देखा, इसे कहते हैं बेस्ट दादाजी। पापा आप कहाँ हो? मैंने कहा कुछ पैसे चाहिए। बहू के नेकलेस के लिए चाहिए ना? क्या पापा, क्या क्या सोचते हो? बस बिजनेस के लिए चाहिए। बेटा, मैं कहाँ से लाऊं? पीएफ तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब कहाँ से? क्या पापा, रिटायरमेंट को 5 साल हो गए, हम आपके लिए कितना कुछ करते हैं। आपसे कुछ कहो तो बस कहाँ से लाऊं? इतनी पेंशन आती है, आती कहाँ है? करते क्या हो उसका? बेटा, पेंशन घर के खर्च में ही काम आती है। छोड़ो पापा, आपसे बात करना ही बेकार है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? बेटा, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी बस इसी कोशिश में गुजारी है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, शिकायत ना हो, और आज जब मैं कमज़ोर हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, तो तुम मुझे कह रहे हो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत थी? हम आपके लिए कितना कुछ करते हैं, और अब जब हमारी बारी आई तो हम मुझसे नाराज़ हो गए। वाह, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। जिस पिता ने तुम्हें हर चीज़ दिलाई, ज़िंदगी की हर खुशी दी, और अब जब तुम्हारे ज़रूरत है उनको, तो तुम पूछते हो उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है। सही बात है बेटा, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। पेड़ की बेशर्मी देखो, उसको इतना घमंड क्यों है? भुला बलिदान बीच का अपनी मस्ती में मगन क्यों है? जलता रहा वो दिए सा तेरी खुशी के लिए हर दम। आज उसके 2 पल की खुशी के लिए तो मुकरता क्यों है? दोस्तों, दादा ने कभी वर्दी पहनकर देश की सेवा करी, और आज दूसरी वर्दी पहनकर अपने परिवार की आशाओं को पूरा कर रहे हैं।
हमारा संदेश बस इतना सा है कि हमारे सभी बुजुर्ग हमारे परिवार, समाज और देश के गौरव है। उनकी उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन हम आधुनिकता की रोशनी में हमारे मूल्यों व संस्कारों को भुलाकर हमारे सम्माननीय बुजुर्गों के प्रति सम्मान, प्रेम और स्नेह नहीं रखते हैं, जिनके वो हमेशा से हकदार थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। Reverend Father Principal Ramesh Ji Yadav, Rajesh Ji Jaiswal, Mrs. Vijay Lakshmi Ji Jaiswal from Bhilwara, grandparent of Chirag Jaiswal. Mr. Bansilal Soni from Raipur, grandparents of Jivika Soni, class 8th B. Mr. Girdhari Singh Ji Nirvan, grandparent of Lavashvi Singh from Jaipur. Mrs. Sunita Loda, grandparents of Ronit Loda, class 8C from Raipur. Mr. Kela Singh Ji Rawat, Mrs. Premi Devi from Kanakhedi, grandparent of Meenal Rawat. आज के ग्रैंड पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में सेंट पॉल स्कूल में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, सेंट पॉल के प्रिंसिपल साहब व सभी स्टाफ्सगण, प्यारे प्यारे बच्चों व मेरे प्यारे प्यारे अभिभावकों को सबको सादर प्रणाम व सभी को नमस्कार। आज सेंट पॉल स्कूल में जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो अवसर देखने को मेरे को मिला और जो स्कूल में जो प्रोग्राम किया गया, वह मैंने ऐसा प्रोग्राम कभी भी नहीं देखा। और सेंट पॉल स्कूल में हर साल में 2-3 दफ़े मुझे आने का मौका मिलता है और जो सेंट पॉल स्कूल के द्वारा जो भी प्रोग्राम कराए जाते हैं वो एक से एक शानदार प्रोग्राम कराए जाते हैं। और सेंट पॉल स्कूल की जिस तरह की पढ़ाई है वो पूरे राजस्थान में नाम कर रही है। मैं तो सभी टीचर्स, प्रिंसिपल साहब से यही निवेदन करूंगा कि सेंट पॉल स्कूल का नाम आगे भी रोशन हो। आप इस तरह की प्यारे प्यारे बच्चों में शिक्षा डालें कि आगे बढ़ के सेंट पॉल स्कूल का नाम करें। और आज हमारे को ग्रैंड पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में याद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। Now, I request grandparent of Chirag Jaiswal, Mr. Ramesh Ji Jaiswal, to express his views. परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब एवं स्टाफ, गांव से और दूर दराज से पधारे हुए बुजुर्गों, माताओं, बच्चे और भाइयों, मुझे आज इस प्रोग्राम में आने की बहुत ही खुशी है। प्रिंसिपल साहब एवं पूरा स्टाफ हमारे बच्चों को सुसंस्कृत कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम बताया उसमें बच्चों से यही दिखाया गया है कि किस तरह से घर में बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाए, उनका आदर किया जाए। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से घर और परिवार को सुदृढ़ किया है, उसको समृद्धशाली बनाया है, सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, अपनी उसमें मेहनत और योगदान दिया है। तो उन बुढ़ों को जिनकी अब श्रद्धा नहीं है बोलने की, चालने की, उनका आदर किया जाए। मैं सभी बच्चियों को और बच्चों से यह निवेदन करूंगा या ये निर्देश देता हूं कि आपको आपके जो ये टीचर्स, प्रिंसिपल साहब, लेक्चरर साहब जो आपका चहुमुखी विकास कर रहे हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो आपका हो रहा है, उस डेवलपमेंट को आप स्वीकार करें और उनके दिशा निर्देश में अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आप ओबीडियंट बने, इनकी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे आपका विकास होगा। जिस प्रकार से बाग में एक कली होती है और माली उसकी चारों तरफ से सुरक्षा करता है, उसको पानी देता है और उसको धूप से
बरसात से हर तरह से सुरक्षित करके उसको बढ़ाता है, वो फूल बनता है और फूल बन करके लोगों को आकर्षित करता है, सुगंध देता है, उसमें कोमलता होती है। तो आपका जीवन भी ये आपके स्टाफ, आपके गुरुदेव, प्रिंसिपल साहब एंड अन्य स्टाफ सब आपके जीवन को बढ़ा रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। मैं सभी से ये कहूँगा कि आप इनके प्रति श्रद्धा रखें, इनके वचनों में विश्वास रखें, इनके शब्दों में विश्वास रखें कि हमारे गुरुजी जो हमको क्लास में कुछ कहते हैं वे वास्तव में सत्य है और हमें उसका जीवन में पालन करना चाहिए। मैं फिर प्रिंसिपल साहब और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और ये अच्छा मौका दिया। धन्यवाद। Now I request Mr. Bansilal Soni, grandparents of Jivika Soni, to share their views. Now, I request Mr. Girdhar Singh Ji to express his views. Respected father, teaching staff, all my dear grandparents, and all these beautiful flowers of this garden. I welcome you. I would like to convey one message to students, particularly the senior students, because they are going to decide their future now. So some of them, they want to become a doctor, an engineer, or IAS, IPS, whatsoever it may be. But dear students, first you decide your target, choose your target, and then try to achieve it positively, judiciously, religiously. So I would like to convey this message. Now I request Ma'am Chaba to come on the stage and express her views. Respected Father Principal, sisters, मेरा यहाँ का स्टाफ, कर्मठ स्टाफ, हार्ड वर्किंग स्टाफ, मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने हम सबको ये सौभाग्य प्रदान किया कि आज हम अपने ग्रैंडसन्स डॉटर के साथ स्कूल में इनवाइटेड हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे लिए क्या हो सकता है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबका, फादर प्रिंसिपल का है जिसने इन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया। इसके लिए मैं इन सब की बहुत आभारी हूँ और अपने सब भाई बहनों की तरफ से फादर प्रिंसिपल का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि टाइम देखिए जो है आज का बहुत फास्ट है और हमारे बच्चों का टाइम वो नहीं है जो हमारा था। हमें समझाते रहते थे, हम लोग देर में समझते थे। आज हम जब बच्चों को कोई चीज़ समझाते हैं तो उनका आईक्यू हम लोगों के आईक्यू से बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी कैच करते हैं वो चीज़। सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की बात है। अगर आज हम हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हमें धोखा दें या हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चलें। इसलिए बच्चों, तुम कभी गलत होगे ही नहीं अगर हम आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। मेन चीज़ यही है। देखिए, एक चीज़ आपने सब बच्चों ने कहानी पढ़ी होगी एकलव्य की। आपको सबको पता है
कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक भी दिन धनुर्विद्या नहीं सिखाई, फिर भी वो कितना पारंगत हुआ कि उसने पांडवों को, सबको जो धनुर्धर थे उनको सबको पीछे छोड़ दिया। उसका रीजन क्या आप में से कोई बता सकता है? क्या था, क्या कारण था कि एक भी दिन द्रोणाचार्य ने उनको धनुर्विद्या नहीं सिखाई, फिर भी वो सबसे आगे निकल गए? बता सकता है कोई? उसका सिर्फ एक ही कारण था कि उनकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा थी। एक भी दिन नहीं सिखाया कि, और फिर भी वो सबसे पारंगत हो गया। इसलिए बच्चों मैं तुम्हें यही कहूँगी कि हमेशा जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके अध्यापक गण हैं, हमेशा उनका सम्मान करिए। जो भी वो आपको सिखाते हैं वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो आपको देते हैं, और उनका हमेशा सम्मान करिए। आप बहुत ऊंचे जाओगे। हमारे इस स्कूल का मैं पहले दिन से ही 6 जुलाई 82 से इस स्कूल के संपर्क में हूँ। मुझे मालूम है इसका जो पास्ट है बहुत गोल्डन रहा है। हमारे बच्चे जहाँ पर भी गए हैं, इस स्कूल के बच्चे पूरी दुनिया में नाम ऊंचा किया है। इवन में एक बच्चे ने तो 28 इयर्स की एज में अमेरिका की एक कंपनी का CEO बन के एक रिकॉर्ड तक बनाया है। इतने अच्छे हमारे बच्चे निकले और आज भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। और वो तो गोल्डन की तरह चमके, आप डायमंड की तरह चमकोगे। आप मेहनत करिए, श्रद्धा रखिए अपने टीचर के प्रति और अपने दादा दादी के प्रति। घर में बड़ों का सम्मान करोगे, उनका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत माता की। Come on stage and share her views. Good morning to all, respected father, sisters, and my colleagues as the grandparents. I also proud to that as a grandparent present here, and the children, lovely children, my all, and the teachers and my friends all. Now today I get the great achievement by the Father given to us, the grandparents as. So the children, you all respect your grandparents and give the time to spend with them and sit with them and help them. It is the thing that you can do and you can help in this way, obey them, as now they are given too much to you and to your parents. So please, all the children, please now keep in mind that give the respect to your grandparents. It is very, very necessary to this time also and before also, we also get, okay? And thank you. Stage and share his views. Ramesh Ji Yadav. प्यारे बच्चों, सम्मानीय शिक्षकगण, समस्त कर्मचारीगण, मेरे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और सबसे ज़्यादा सम्मानीय हमारे फादर फ्रांसिस, जिन्होंने ये शानदार आयोजन किया है। साथियों, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ब्यावर में ये पहला आयोजन है जो किसी संस्था ने ग्रैंड फादर्स को बुलाया, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया है। बहुत यूनिक ये प्रोग्राम है और इसकी खास ज़रूरत है दोस्तों। पहले बच्चों के पास पढ़ाई के अलावा टाइम होता था कुछ, तो वो अपने दादा दादी, नाना नानी, ताऊ जी, ताया जी, चाचा चाची के पास समय बिताते थे। वहाँ उन्हें अच्छे संस्कार सीखने को मिलते थे। वहाँ कहते थे आप कहानी सुनाओ। हम छोटे थे, हम अपने पेरेंट्स को कहते कोई कहानी सुनाइए, तो उस कहानी में कोई ना कोई शिक्षा होती थी, भले वो श्रवण कुमार की हो, भले हरिश्चंद्र की हो, या भगवान राम की हो, या कृष्ण की हो। त्याग, बलिदान, अहिंसा, दया भावना, ये सब उन कहानियों में हमें अपने पेरेंट्स से मिलती थी, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो टीचिंग स्टाफ है और सर हैं, बच्चों का
डेली शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उससे समय ही नहीं मिलता है कि अपने दादा दादी के पास या अपने नाना नानी के पास या घर के बुजुर्गों के पास जो टाइम थोड़ा व्यतीत कर सके, उनका जो अनुभव है, उनके जो आचरण है वो सीख सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फादर से कुछ ऐसा करें जो बच्चों को आधा घंटे पौन घंटा करीबन टाइम मिले। और फादर बहुत अच्छा आयोजन करते रहते हैं, इस आयोजन के लिए मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों एक बार शानदार तालियां इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। Now, I request Mr. Kela Singh Ji Rawat to express his views. आदरणीय प्रिंसिपल साहब फादर फ्रांसिस, सम्मानीय मंच, मेरे सभी बुजुर्ग साथियों, वरिष्ठ नागरिकों, अति वरिष्ठ नागरिकों, अध्यापक साथियों और बच्चों, आज का ये कार्यक्रम देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम मैंने पहले भी मेरा देखा हुआ है। इस विद्यालय को फादर फ्रांसिस जैसा उत्साही, लगनशील और अनुभवी प्राचार्य प्राप्त हुआ है, ये इसके लिए एक सौभाग्य की बात है। 2008 और 2009 में मैं भवानी खेड़ा स्कूल में एज ए सीनियर टीचर के तो टीचर था सेंट मार्टिन स्कूल में, तो आप हमारे प्रधान अध्यापक बन करके आए थे। वो सेंट मार्टिन का 100 साल होने वाले थे, शताब्दी समारोह आपने मनाया था। मेरे ख्याल से इसीलिए 2 साल के लिए बिशप ने आपको वहाँ भेजा। और वो समारोह ऐसा रहा कि आज भी उस गांव के लोगों में वो एक तरह की छाप आपने छोड़ी है। उसमें भी उसकी ये विशेषता थी कि उसकी आगे वाली जो लाइन थी उसमें वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के नाम लिख करके रखे थे आपने कि यहाँ बैठेंगे वो आदमी जो पास पड़ोस में आपके ध्यान में थे। तो अति वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान आप करते आए हैं। इन सब के लिए मैं आप सभी मेरे वरिष्ठ नागरिक साथियों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाप भी ऑफिसर के पद से रिटायर था, दादा समझ लो, बाप समझ लो। अच्छी पेंशन मिलती थी, बेटा अच्छा जॉब में था, फिर भी दादा ने कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका पेश कर दी भरण पोषण की। मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा, अरे भाई क्या कमी है, क्या चाहते हैं? तो लड़के ने बोला, मेरा पिताजी जो चाहे मैं तैयार हूँ, जितना पैसा चाहिए मैं हर महीने दे सकता हूँ। उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, फिर भी उनकी मांग में करने को तैयार हूँ। अगली पेशी पर मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला सुनाया। पहले पूछा उससे, बुजुर्ग व्यक्ति से, कि आपको क्या चाहिए ये बताओ। कि साहब मेरे को 100 रुपये हर महीने मेरे हाथ में चाहिए मेरे लड़के से। बोला ठीक है, फैसला सुना दिया। लड़के ने बोला ठीक है, मंजूर है। मजिस्ट्रेट साहब के समझ में कम आया, उसको बुलाकर के पूछा, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लड़के के पास पैसों की कमी नहीं है, ये 100 रुपये वाली बात हाथ में देने की कहां से आ गई? बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि मजिस्ट्रेट साहब ये 100 रुपये देगा तो मेरे पास 5 मिनट रुकेगा, मुझसे बात करेगा, मैं इसका हालचाल पूछूंगा, ये मेरे को करेगा, इसलिए मुझे 100 रुपये की जरूरत नहीं है, पर वो वक्त नहीं है उसके पास में। वैसे तो वो 20,000 महीने का डाल देगा खाते में, उससे कोई मतलब नहीं। सपना उसे नहीं कहते हैं जो नींद में आता है, सपना उसे कहते हैं जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। Dedicate a heartful song to our beloved grandparents, expressing our gratitude and love. तेरी मेरी कहानी
का यह दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज हम अपने बड़ों की उपस्थिति के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे ये बुजुर्ग हमारे परिवार के आधार स्तंभ है। कविता अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले शब्दों और मनमोहक लय के साथ हमारे दिलों और आत्मा को छूने की ताकत रखती है। इसलिए मैं इशिता और प्रकृति को कविता के लिए बुलाना चाहूँ। वाले हाथों में जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी की बातों में। सुप्रभातम, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं प्रकृति सैनी कक्षा 9वीं की छात्रा और मैं इशिता अग्रवाल कक्षा 10वीं की छात्रा पितामह दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में एक बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने दादा दादी के बेहद करीब होता है। उनके मध्य बेइंतहा प्यार होता है। इसी प्यार को आज हमने कागज़ के पन्नों पर उतारने की कोशिश की है। याद दिलाए चलो आज हम बातें नई पुरानी, नहीं भूले हैं हम वो किस्से, वो परियों की कहानी जिन्हें सुनाते दादा दादी, कभी नाना कभी नानी। कभी लगते जाने पहचाने और कभी अनजाने, दादा दादी नाना नानी के वो किस्से नए पुराने। दिल को बहुत अच्छा लगता है हमें आपके संग, जीवन में भर जाते खुशियों के इंद्रधनुषी रंग। साथ आपका पाकर हम फूलों से खिल जाते, ढेरों प्यार दुलार भरे आशीष आपसे पाते। आप नींव इस हरे पेड़ की, हम हैं प्यारे फूल। आप नींव इस हरे पेड़ की, हम हैं प्यारे फूल। आपको हम और आप हमें नहीं है पाते भूल। प्यार हमें कितना है आपसे कैसे भला बताएं, प्यार हमें कितना है आपसे कैसे भला बताएं। आओ आज जरा देखो हम कैसे इसे जताएं। छत्र छाया में आपकी मिलता हमें सुरक्षित स्थान, बता नहीं सकते शब्दों में जो हृदय में है सम्मान। आपके अनुभव आपकी बातें देती है जो ज्ञान, उनसे हमारे जीवन की होती है डगर आसान। सिर पर हाथ रहे यूं ही आपका, आज कल हर बार। चरणों में करते प्रणाम हम, आप करें स्वीकार। चरणों में करते प्रणाम हम, आप करें स्वीकार। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, दुख का बादल उसकी वजह से घर से दूर ही होता है। दुख का बादल उसकी वजह से घर से दूर ही होता है। किसी ने सच ही कहा है, घर में एक बुजुर्ग का होना ज़रूरी होता है। घर में एक बुजुर्ग का होना ज़रूरी होता है। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अर्थात हमारे जीवन पर दादा दादी का जो योगदान है वह हम 100 वर्ष लेकर भी चुका नहीं सकते। Happy Grandparents Day. Dance on the rhythm of love and happiness. We have a captivating performance lined up. Get ready to be enchanted. हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं, बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो।
मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, समस्त विराजे हुए दादा दादी नाना नानी, प्यारे बच्चों, मेरी पौत्री कक्षा 6 में मीमांसा सिंह, मैं नारायण सिंह पंवार, रिटायर्ड प्रिंसिपल पटेल स्कूल ब्यावर, अभी वर्तमान में पेंशनर समाज के अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। मुझे एक राजस्थानी गीत याद है, जैसा साहब ने बोला, प्राणों सू भी प्यारो लागे माने राजस्थान जी, अलबेलो वीरारो प्यारो माको राजस्थान जी, ओ माको राजस्थान जी, अलबेलो वीरारो प्यारो माको राजस्थान जी, ओ माको राजस्थान जी, मेवाड़ो जो थानो जयपुर अलवर और अजमेर जी। Honorable father and honorable all the grandparents of our child, मेरे सभी प्रिय बच्चों और इस सेंट पॉल स्कूल के सभी संकाय सदस्य, तो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है इस सेंट पॉल स्कूल का, मैं तारीफ करना चाहूँगा कि टीचर्स इन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और साथ ही उनको सारी एक्सरसाइज भी करवाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाते हैं, तो एक सर्वांगीण विकास जो बच्चे का होना चाहिए वो यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय फ्रांसिस सर, सभी गुरुजन और सभी दादा दादियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, और सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। मुझे आज एक सुखद आश्चर्य हो रहा है कि मैं कौन सी कॉन्वेंट स्कूल में आ गया हूँ कि जहाँ के फादर इतने, मतलब हम ग्रैंड फादर्स को याद किया, ग्रैंड पेरेंट्स को याद किया, और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा लड़का भी इसी स्कूल में पढ़ा था 1985 में, और अब मेरे पोते पोते भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और भारत विकास परिषद का मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ 1992 से, और हम यहाँ प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं आज तक, और परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फादर्स डे मनाते हैं, पेरेंट्स डे मनाते हैं, पर आपको मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ग्रैंड फादर और मदर, दादा दादी को याद किया। उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और प्यारे बच्चों, आपको मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ कि जिसके कारण से बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है। आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन है? ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इस दुश्मन को, जिन लोगों का मैं अखबार पढ़ता हूँ और ये भी देखता हूँ, तो जो लोग टॉप करते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, चाहे नीट हो, चाहे IAS हो, IPS हो, RS हो, वो बच्चे वो कहते हैं कि हम पिछले 1 साल से हमने मोबाइल नहीं देखा, टीवी नहीं देखा, वो बच्चे टॉप कर रहे हैं।
तो मेरी आप बच्चों से ये एक एडवाइस है, एक सलाह है, आप नहीं देखें परंतु देखना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के कई प्रोग्राम इसके ऊपर भी आते हैं। तो आप मिनिमम टाइम रखिए, एक लिमिट रखिए टाइम की कि मैं 1 घंटा एक दिन में देखूंगा। अगर आप 2 से 3 घंटा रोजाना देखते हैं तो 1 महीने में 90 डेज होते हैं, 90 आवर्स होते हैं। मतलब आप 1 महीने के 5-6 दिन आपने टोटल इसके ऊपर खराब कर दिए, टीवी और मोबाइल के ऊपर। आपकी स्कूल में, इतनी बढ़िया स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन आवर अजमेर डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। और सक्सेस होने का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आप जब सुबह स्कूल आए तो आप इनको प्रणाम करके आए, सुबह 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 इनका आशीर्वाद लेके आए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सभी दादा दादी की तरफ से फ्रांसिस सर को तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद देने के लिए आ रहा हूं कि आपने हम सबको बुलाया, और फिर मेरी प्रार्थना है कि अगले साल हमको फिर बुलाइए, हम फिर आएंगे। As we celebrate this special day, we have the privilege of having someone with us who has been a guiding value for us, whose leadership has inspired all of us. It's my honor to invite our principal, Father G. Francis, to join us on stage and share their wisdom with all of us. आदरणीय ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाहर से आए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ जयपुर से आए, कुछ रायपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, दूर दूर से अपने नाती पोतों के विद्यालय को देखने के लिए आए हैं। आप सबका विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मेरी परंपरा रही है, जिस भी विद्यालय में मैं जाता हूँ वहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स के घर भी जाता हूँ, और मैं विशेष रूप से उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं घर पर, उनसे मुलाकात करता हूँ ताकि वे जानें हमारे विद्यालय के बारे में। मुझे जानकारी मिली है कि बहुत से जो आज हमारे दादा दादी, नाना नानी यहाँ पर हैं, आपने विद्यालय परिसर में पहली बार अपना कदम रखा है। मेरे यहाँ से कोई रोक टोक नहीं है, आप कभी भी हमारे इस विद्यालय को विजिट कर सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चों के अध्यापक अध्यापिकाओं से मिल सकते हैं, और मुझसे भी मिल सकते हैं। ये वातावरण आप देखें किस प्रकार का है, और आपको भी खुशी होगी कि आपके पोता पोती नाते कहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपने हमें आज आपको सत्कार करने का यह अवसर दिया है। विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में उपस्थित रहें। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली बनता जा रहा है, एकल परिवार बनता जा रहा है, जहां पर दादा दादी, नाना नानी को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। मैं उस पीढ़ी से आता हूं जहां ब्रिज बना हुआ है। शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं जो सामूहिक परिवार में रहे हैं, और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है शायद वो एकल परिवार में विश्वास करती है। तो शायद वो बच्चे इतना समझ नहीं पाएंगे कि एक संयुक्त परिवार का कितना महत्व होता है। और इसी मकसद से आज हमने आपको यहाँ पर एकत्र किया है। अवश्य आपके बीच में और आपके नाती पोतों के बीच में पेरेंट्स एक बाधा है कि बच्चे टाइम क्यों नहीं देते हैं। बच्चे अपने घर पे जाते हैं 3 बजे तक, खाना नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं, वही बैग लेकर के ट्यूशन चले जाते हैं। 8 बजे घर आते हैं, और 8 बजे आते हैं तब माता पिता या जो भी शॉप पर हैं, दूसरी जगह पर हैं, उनको मुश्किल से टाइम दे पाते हैं, और दादा दादी के लिए टाइम नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, सीबीएसई ने पैटर्न इतना सरल कर दिया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा सच कुछ नहीं है, समझने के लिए बहुत कुछ है। हमारे बच्चे समझ नहीं रहे हैं, रट रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे रटे नहीं, समझें, जो आजीवन उनके लिए लाभदायक होगा। हो क्या रहा है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसी को रटाने के लिए ट्यूशन पे भेजा रहा है, और उसी चीज़ को बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, तो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारे एक दादाजी ने जो स्टोरी बताई थी 100 रुपया हाथ में देने वाली, बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे बच्चों के पास में
मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो जानकारी है कि बहुत सारे बच्चे संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ मामा वगैरह सब साथ में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और संस्कार वहीं से पैदा होते हैं। लेकिन दिखावा ज़्यादा है आजकल। दादा दादी ज़्यादा, माता पिता पैसों के बल पर दिखावा ज़्यादा करते हैं, जो शायद समाज को और हमारी भावी पीढ़ी को बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती जा रही है। हम जो हैं, हम अपनी नींव को न भूलें। फल हम बहुत अच्छे दे रहे हैं, लेकिन हमारी नींव कैसे हुई है आप सभी को पता है। आप सभी बड़े बुजुर्ग हैं और आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप स्टोरी के माध्यम से बच्चों को अपने बीते हुए कल के बारे में बताएं, ताकि वे अपनी पुरानी बातों के बलबूते अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएं। मेरी हमेशा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट रही है, कम से कम एक भोजन अपने बच्चों के साथ में, अपने दादा दादी के साथ में बैठ करके करें। ऐसा ना हो टीवी ऑन कर दें या म्यूजिक ऑन कर दें या एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं, तू पहले खा ले मैं बाद में खा लूँगा, ऐसा ना हो। यदि आपने हर दिन एक खाना अपने बच्चों के साथ में, अपने पोतों के साथ में खा लिया, तो आपके बच्चों के बीच की दूरी, आपके पोते नातों के बीच की दूरी कम होती नज़र आएगी और ये संस्कारित होंगे। जैसा कि हमारे ही दादा दादी ने कहा, संस्कार सीखने से नहीं देखने से। आपके बहुत सारे अनुभव हैं, ये देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और ये अपने जीवन में लागू करेंगे। एक बार फिर से आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इतनी संख्या में उपस्थित हुए, आप सभी को हमारा संत पॉल परिवार ब्यावर हार्दिक धन्यवाद करता है और आशा करता है कि आप इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। आपको, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और आप सभी ग्रैंड पेरेंट्स को आपके आशीर्वाद के लिए और हम पर विश्वास जताने के लिए कि आप अपने बच्चों को सेफ इस विद्यालय में भेज रहे हैं, आपका विद्यालय परिवार बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। थैंक यू।